हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू डीडी स्कूल ऑफ JCRT। आज मैं आपको क्लास 8 का यूनिट 3A सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं कि ये चैप्टर किस बारे में बताता है, यहाँ पे क्यों हम इसको वाइल्ड रोजेस बोलते हैं। तो बिफोर वी रीड द चैप्टर, लेट अस रीड। Think of the words loyalty, duty, respect, sacrifice, service. Whose picture comes in front of your eyes? Definitely a soldier. We should respect them. It is because a soldier awakes somewhere as far as Siachen that we are able to sleep peacefully in our houses. What is it like to be posted at a place where temperature is as low as minus 40 degrees Celsius? रीड ऑन टू फाइंड इट फॉर योरसेल्फ। तो बच्चों, हमने देखा कि इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे लॉयल्टी, ड्यूटी, रिस्पेक्ट, सैक्रिफाइस, सर्विस। ये सारे वर्ड्स, लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठा, ड्यूटी होता है कर्तव्य, रिस्पेक्ट होता है सम्मान, सैक्रिफाइस बलिदान, सर्विस सेवा। यानी ये सारे वर्ड्स जब हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में किस व्यक्ति का पिक्चर आता है? यस, डेफिनेटली एक सोल्जर का, सिपाही का। ये चैप्टर जो है वो एक सोल्जर के बारे में बताता है जो सियाचिन जगह है वहाँ पर वो पोस्टेड है, जहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री है। द नेम सियाचिन refers to a land with an abundance of roses. Sia in the Balti language refers to the rose family plant widely found in the region, and Chun refers to anything found in abundance. In spite of the severe climate, the word Siachen ironically means the place of wild roses. It falls from a height of 5,753 meters above sea level and is the longest glacier in the Karakoram range of the Trans-Himalayas. It is located just northeast of the point where the line of control between India and Pakistan ends. The term line of control is the line that India and Pakistan have agreed upon for division of Kashmir since 1972. The land on one side is controlled by India and on the other side by Pakistan. जब हम सियाचिन वर्ड्स देखते हैं तो ये दो वर्ड से बना है। सिया इन बाल्टी लैंग्वेज, दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, उसमें एक है बाल्टी लैंग्वेज। तो बाल्टी लैंग्वेज में सिया का मतलब होता है रोज फैमिली प्लांट, और चुन का मतलब होता है एनीथिंग फाउंड इन अबेंडेंस, यानी प्रचुर मात्रा में जो कुछ भी मिलता है। तो सियाचिन का मतलब हो गया प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस, यानी प्रचुर मात्रा में वहाँ पर वाइल्ड रोजेस मिलता है। यहाँ पर वाइल्ड रोजेस का मतलब ये नहीं हुआ जंगली प्लांट, जंगली गुलाब। वाइल्ड का मतलब होता है बहुत सारा, जो एकदम पूरी तरह फैला हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि इतना कठोर क्लाइमेट है वहाँ का, बहुत सीवियर मतलब बहुत कठोर क्लाइमेट है, फिर भी वहाँ पर प्रचुर मात्रा में रोज प्लांट मिलता है। और इसकी जो हाइट है, जो सियाचिन जहाँ पर है उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है। ये 5,753 मीटर अबव सी लेवल है, जब मतलब इसकी हाइट 5,753 मीटर सी लेवल के ऊपर है। और ये जो है सबसे लंबा ग्लेशियर है, कहाँ पर? काराकोरम रेंज में, ट्रांस हिमालयस में जो काराकोरम रेंज है उसमें सबसे लंबा ग्लेशियर है। और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। Both India and Pakistan claim authority over the entire Siachen region. Between 1984 and 1999, frequent fighting took place between India and Pakistan to take control of the region. Siachen Glacier, with all major passes, is currently under the administration of India since 1984 and forms part of the Leh district of Ladakh, while Pakistan controls the region west of Saltoro Ridge. India has also built the world's highest helipad on this glacier at a place called Sonam, which is 21,000 feet above the sea level.
In 1984, India launched Operation Meghdoot, a military operation that gave India control over all of the Siachen Glacier, including its tributaries. Under Operation Meghdoot, Indian troops took prior action, and the Kumaon Regiment of the Indian Army as well as the Indian Air Force went into the glacier just a day before Pakistan's Operation Ababil to occupy most of the dominating heights on Saltoro Ridge. सियाचिन रीजन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, जैसे 1984 के से 1999 के बीच में इंडिया और पाकिस्तान में इतनी बहुत सारे फ्रीक्वेंट लड़ाइयाँ हुई ताकि वो लोग क्या कर सके, सियाचिन को कंट्रोल कर सके। लेकिन सिंस 1984 से ही इंडिया ने ये सियाचिन ग्लेशियर को इसके जितने भी मेजर पासेस है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, जो इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। यानी वो जो ग्लेशियर का पार्ट है वो ले डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है जो लद्दाख में है। या और वाइल पाकिस्तान ने क्या किया, कंट्रोल किया वेस्ट ऑफ सल्टोरा रिज। इस सियाचिन के वेस्ट ऑफ सल्टोरा रिज को उन्होंने कैप्चर किया। इंडिया ने एक सबसे हाईएस्ट हेलीपैड, वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेलीपैड इस ग्लेशियर में एक जगह जिसका नाम है सोनम, वहाँ पर स्थापित किया हेलीपैड को, और वो जो है उसकी हाइट है 21,000 मीटर अबव सी लेवल। और 1984 में इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया बोल के मेघदूत ऑपरेशन लॉन्च किया कुमाऊं रेजिमेंट और इंडियन एयर फोर्स से के साथ मिलके, ताकि वो लोग, पाकिस्तान ने जब एक ऑपरेशन किया था अबाबिल, उसके एक दिन पहले उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया ताकि वो लोग वो जो साल्टोरा रीजन है पाकिस्तान का, साल्टोरा रिज, उसको वो लोग ऑक्यूपाई कर सके, और उन्होंने ये सफलतापूर्वक भी किया। Not all soldiers die here of enemy action. Some die because of blood clot in the lungs caused by the thin air on the high mountains. On an average, one Indian soldier is killed every other day due to extreme weather conditions. The soldiers call it General Glacier. The generals call it a prestige issue. They sacrifice their lives because they love their country and want to keep her borders intact. The soldiers gathered around the funeral pyre of their comrade on the banks of the frozen Nubra River. It is a familiar sight. Fighting back the icy winds and flakes that sting the face like thorns, they come to pay their last respects to one of the Siachen warriors. इस जगह में सभी सोल्जर्स एनिमी के अटैक से नहीं मरते हैं, लेकिन कुछ लोग मरते हैं ड्यू टू ब्लड क्लॉट कॉज्ड बाय थिन एयर ऑन द हाई माउंटेन्स। यानी ये सियाचिन जो है उसके जो पहाड़ी है एकदम हाई है, तो यहाँ पर जो एयर है वो बहुत थिन हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा हाइट में तो हवा बहुत पतली हो जाती है, कम होते जाती है, तो उसके चलते बहुत लोग मरते हैं क्योंकि ब्लड क्लॉट कर जाता है। और हर एक दिन के बाद एक सोल्जर, एक सैनिक वहाँ पर मरता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत ही कठोर है, सीवियर है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस जगह को जब एक सोल्जर मरता है तो उसको बोलते हैं जनरल ग्लेशियर। और ये जनरल ग्लेशियर जो है ये वहाँ के जो हाई ऑफिशियल्स रहते हैं उनके लिए एक प्रेस्टीज इश्यू रहता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा बॉर्डर पर खड़े तैनात रहते हैं ताकि हम सुकून से सो सके। और ये लोग उस जगह जो सोल्जर्स मरते हैं उनको एक फ्रोज़न नुब्रा रिवर है, वहाँ पर जाके वो लोग उसका क्रिमेशन करते हैं फ्रोज़न नुब्रा रिवर पे। और उस जगह में जब ये सोल्जर्स जाते हैं उनको रिस्पेक्ट देने, तो वहाँ की जो आइसी विंड्स जो होता है उनके चेहरे को एकदम कांटे की तरह चुभा देता है, और उस आइसी विंड से वो फाइट करके उस जगह जाते हैं ताकि उनके कॉमरेड्स को वो लोग रिस्पेक्ट दे सके। डेली एग्जिस्टेंस हियर इज सो पेनफुल दैट सोल्जर्स कैनॉट बी सेंट अप अगेन फॉर एटलीस्ट 15 years. Of every 2 men sent up, one is a casualty. The main glaciers and its severe branches
face blizzards with speeds of up to 150 knots, nearly 300 km per hour, that can blow a man off. Temperature drops to 40 degrees below freezing point. The lowest recorded so far has been minus 45 degrees Celsius. Added to this, the wind chill factor WCF in the region has proved fatal. The shelter and clothing given to the Jawans is designed to protect them from WCF of up to 800. But the average WCF in winter is around 1400, when any exposed flesh will freeze within minutes. In this region we cannot send the soldiers again for at least 15 years. यानी इस region में हम soldiers को दोबारा फिर 15 साल के लिए नहीं भेज सकते. एक बार यदि भेज दिए तो फिर दोबारा नहीं भेज सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बहुत ही वहाँ से आने और जाने में बहुत ही चिल फैक्टर रहता है. Every 2 men sent up, 1 is casualty. हर 2 men को, 2 लोग को जो भेजते हैं उनमें से 1 कैजुअलिटी रहता है. और वहाँ पर जो ब्लिजार्ड्स है, सीवियर विंड है जो बहुत ही तेज रफ्तार से चलता है, जैसे 300 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से चलता है, वहाँ का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है. टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो 40 डिग्री होता है. और अभी तक का सबसे ठंडा रिकॉर्डेड लोएस्ट रिकॉर्डेड इज -45 डिग्री सेल्सियस. और वहाँ पर जो विंड WCF का मतलब होता है विंड चिल फैक्टर. तो WCF जो है वहाँ पर वो बहुत ही फैटल है, बहुत ही डेडली है WCF. और सोल्जर्स के लिए एक ऐसा कपड़ा डिज़ाइन किया गया वहाँ पे ताकि जो WCF है उसको अप टू 800 को फेस कर सके. लेकिन अभी तक वहाँ पर WCF जो गया हुआ है विंड चिल फैक्टर 1400 है, जो एक सोल्जर्स का जो बोलते हैं ना फ्लैश को भी चीर देता है. अभी तक का रिकॉर्डेड WCF गया है. इन सच एन एक्सट्रीम क्लाइमेट नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल because almost everything freezes solid. Onions need to be cut, eggs become like rocks and cannot even be broken, and most toothpaste except gel cannot be squeezed out. Chocolates become as hard as steel plates, and if you bite them you could break your teeth. Metal and the human skin become so chilled that when a Jawan tries to load his gun, the bullets stick to his gloveless hand. If he tries to take them off, the skin will also peel off. Except for rum and kerosene, everything is frozen solid. Even in full clothing, one cannot stand outside for more than 10 minutes. One big challenge is to keep men mentally alert in that condition. टेम्परेचर वहाँ का इतना ठंडा है कि सब चीज़ वहाँ पर सॉलिड बन जाता है. जैसे अनियंस को हम पील करते हैं यहाँ पे, बट वहाँ पर हमको काटना पड़ता है, वो इतना हार्ड हो जाता है. एग्स बिकम रॉक, अंडा भी इतना हार्ड हो जाता है कि वो इजीली क्या होगा, ब्रेक नहीं हो सकेगा. टूथपेस्ट एक्सेप्ट जेल कैनॉट बी स्क्वीज्ड आउट, यानी टूथपेस्ट जो है जेल के अलावा हम उसको स्क्वीज आउट करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो भी अंदर जम जाता है, बर्फ बन जाता है. चॉकलेट्स बिकम एज हार्ड एज स्टील प्लेट्स. चॉकलेट्स जो है वो इतना हार्ड हो जाता है जैसे स्टील प्लेट्स के तरह. यानी चॉकलेट्स हमारा फेवरेट चीज़ है, वो हम चाहेंगे कि यदि हम सियाचिन में चॉकलेट्स ले जाएं और उसको खाएं तो क्या होगा, खा नहीं सकेंगे, बिकॉज इट बिकम्स वेरी हार्ड. एंड इफ़ यू ट्राई टू बाइट वन चॉकलेट यू विल ब्रेक योर टूथ. मेटल्स एंड ह्यूमन स्किन बिकम सो चिल्ड. मेटल्स और ह्यूमन स्किन इतना चिल्ड हो जाता है कि कोई भी जवान यदि लोड करेगा अपने गन में बुलेट को, तो उसका बुलेट क्या होता है, उसके ग्लवलेस हैंड, मतलब उसका जो ग्लव्स नहीं पहना है हाथ, उसके हाथ में यदि वो बुलेट रहेगा तो वो चिपक जाएगा, और उस बुलेट को यदि उसको निकालना होगा तो उसका हाथ का जो स्किन है वो भी निकल जाएगा. एक्सेप्ट फॉर रम एंड केरोसिन, सिर्फ 2 चीज़ वहाँ पर नहीं जमती है, वो है रम एंड केरोसिन. रम इज़ फॉर लाइटिंग एंड रम इज़ फॉर ड्रिंकिंग, एंड केरोसिन है वो जो लाइट करने के लिए.
तो इस दो चीज़ के अलावा सारा चीज़ वहाँ पर बर्फ बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ वहाँ के जो सोल्जर्स को ये सिखाया जाता है कि आप मेंटली अलर्ट रहे उस कंडीशन में। फिजिकली तो वो लोग बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, लेकिन उनको मेंटली स्ट्रांग बनाया जाता है ताकि उस कंडीशन को वो फेस कर सके। When a soldier gets a call to join the glacier camp, he bathes and shaves, knowing that he will not be in a condition to do so for the next 3 months. Many write long letters home, being uncertain when they may be able to do so next. Then they pack their rucksacks with warm clothes, a sleeping bag, photographs, toiletries, and all important kerosene stuff. The stove is used for keeping warm and helping in melting snow for drinking and having a wash. एक सैनिक को जब कॉल आता है ग्लेशियर में जाने के लिए, तो वो क्या करता है, नहाता है और शेव करता है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए वो नहा लेता है और शेव करता है, क्योंकि वहाँ पर उसको क्योंकि पानी जो है वो जम जाता है, इसलिए वो पानी नहीं मिलेगा, ना नहा सकेगा ना शेव कर सकेगा। और वो बहुत लंबा चौड़ा लेटर लिखता है अपने परिवार वाले के लिए, ताकि वो फिर, क्योंकि उसको पता नहीं रहता ना कि कब वो लौट कर आएगा। ही पैक rucksacks with warm clothes, a sleeping bag, photographs, toiletries and kerosene stove. यानी वो अपना बैग को वार्म क्लोथ्स के साथ पैक करता है, उसमें एक स्लीपिंग बैग रखता है, उसमें अपने परिवार का फोटोग्राफ्स रखता है, फिर टॉयलेटरीज का सामान रखता है और केरोसिन स्टोव रखता है। केरोसिन स्टोव इसलिए रखता है ताकि वो क्या कर सके, बर्फ़ को पिघला सके, किस लिए, पानी पीने के लिए, एंड स्पेशल हैविंग वॉश फॉर वॉश करने के लिए। On 3rd February 2016, an avalanche hit an Indian military base in northern Siachen Glacier region, trapping 10 soldiers under deep snow. Lance Nayak Hanamanthappa Kopad, an Indian soldier with the Madras Regiment of Indian Army, survived the massive avalanche. He was found during post-disaster avalanche rescue operation by the Indian Army 6 days after the disaster. He was rescued from 35 feet beneath the snow in -45-degree temperature. 9 other personnel at the post died in the incident. Kopad also couldn't survive for long due to multiple organ failure. After a few days, he died. 3 फरवरी 2016 को इंडियन मिलिट्री बेस जो है सदर्न ग्लेशियर रीजन में है, वहाँ पर बहुत बड़ी एवलांच मतलब लैंडस्लाइड, बर्फ का स्लाइड हुआ। ट्रैपिंग 10 सोल्जर, उस मिलिट्री बेस के 10 सोल्जर्स उसमें फंस गए, जिसमें से लांस नायक हनुमंथप्पा कोपड़ जो मद्रास रेजिमेंट का था वो सरवाइव किया, जिसे इन्होंने 6 days आफ्टर द डिज़ास्टर में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन। तो उसमें इन्होंने लांस नायक हनुमंथप्पा को निकाला बाहर। बाकी जो 9 अदर सोल्जर्स थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो हनुमंथप्पा थे वो 35 फीट बीनीथ स्नो के अंदर 35 फीट नीचे चले गए थे, जहाँ का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस था। तो हनुमंतप्पा को तो उन्होंने रेस्क्यू कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनका जो इंटरनल हानि हुई थी शरीर के अंदर, जिससे वो सरवाइव नहीं कर सके। Avalanche and other environmental factors are the leading cause of death in Siachen. Over 870 soldiers have lost their lives in the recent past due to extreme climatic conditions and environmental factors. Despite such challenges and hardship, our army men are always ready to serve the nation and make our countrymen feel safe and secure all the time. सियाचिन में सबसे मेन कॉज है डेथ का एवलांच और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि, और इतना लैंडस्लाइड, बर्फ़ जो ग्लेशियर जो कट के निकलता है, कट के गिरता है, तो उससे ज़्यादा सोल्जर्स वहाँ पे डेथ करते हैं। ओवर 870 सोल्जर्स हैव डाइड इन द रिसेंट पास्ट। रिसेंटली
870 से ज़्यादा सोल्जर्स की मृत्यु वहाँ पर हुई ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वहाँ की कड़ाके की ठंड की वजह से। डिस्पाइट दिस आवर सोल्जर्स आर ऑलवेज रेडी टू सर्व द नेशन। इसके बावजूद इतने सारे हार्डशिप है वहाँ पे, इतने सारे चैलेंजेस हैं, इसके बावजूद हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं, हमारे देश के जो सिपाही हैं, वो वहाँ पर डटे रहते हैं ताकि हम क्या कर सकें, यहाँ पर सेफ रहें और सिक्योर रहें। वो देश की हिफाजत के लिए, देश के बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये स्टोरी ये तुम्हें पसंद आया होगा और सियाचिन के बारे में आप जाने होंगे जो आज तक नहीं जानते हैं। बहुत कोई तो जानते होंगे, लेकिन वहाँ पर इतनी हार्डशिप है, यानी हमारे सिपाही जो इतने हार्डशिप के बावजूद हमारी रक्षा करते हैं वहाँ पर सियाचिन में रहकर। तो हम क्या करें, उन सिपाहियों को सलाम करें, उन सिपाहियों का रिस्पेक्ट करें और सम्मान करें। थैंक यू।